Focus on Bharatpur, what happens when the state is seen siding with a particular community unfairly, viewers. What happens then? That section feels emboldened and tends to take the law into their own hands because they feel they can get away with it. Is that the reason why we are seeing an atrocity being visited upon the hapless members of the Dalit community in Bharatpur? Viewers, they were attacked for playing a Hindu song. These Dalit Hindus were celebrating a marriage in the family. Their neighbors didn't quite like it. They were set upon and thrashed, beaten. This is a shocker from Bharatpur, where a pre-wedding Dalit procession was allegedly targeted by a group of Muslims. At the receiving end, the groom and his family alleged that goons were armed and they pushed the groom and did not even spare the women. This is what is being said. Why, viewers? What was so awful about these people? Well, they were playing Hindu songs as part of their rituals. Listen in to Rajkumar, the bridegroom. No arrests, viewers. Zero arrests in this matter. In Hathras, when one Dalit lady was raped, there was absolute pandemonium. The entire opposition landed up in Hathras to protest. Here, viewers, not even an arrest. There's not a squeak from the self-professed defenders of Dalit interests, the Congress party. Not one squeak from the leadership, no action by the government, and viewers, most importantly, no TMC, no Samajwadi Party, no PFI, no SDPI, no journalists, nobody from a particular ecosystem here. Why? Do these Dalit lives not matter? That's the fundamental question. Let's first listen in to the family. बनवारा निकलता है तो हम उस पे बाइक पे बैठे थे 10-12 जने आए और तो उन्होंने डीजे को बंद करने की कही। हमने बार बार मना की डीजे चलने दो। कौन लोग थे जो आए थे, क्यों बंद करवाना चाहा? मुस्लिम। फिर वहाँ ते मेरे पास आए, मेरी कॉलर पकड़ी, नीचे गिरा दिया मैं उन्होंने। दूल्हे को नीचे गिरा दिया? हाँ जी। तुम्हारी निवाज की बात है तो हमें एक बार बताते तो सही आप, तो एक बार हम तक बोलते तो सही है कि हमारे तरावी हैं भाई, धीरे आराम से करो या 10 मिनट लेट कर लेना अपना कार्य तुम, तो आप रुक जाते? आप हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। क्या हुआ था? यही हुआ था, सब लड़ाई मारपीट। क्यों की थी, क्या कहा था उन लोगों ने, कैसे शुरू हुआ था? शुरू ऐसे हुआ था, सब डीजे बंद करवाने के लिए चढ़ाई हो रही थी बनवारे लिखने जैसे, तो उनने मतलब बनवारे की मना कर दी। 9 बजे की बात थी। क्यों? हम नहीं लिखने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? दलित है इसलिए क्या? और क्या साहब, उनका मंत्री है इसलिए। तो महिलाओं के साथ भी मारपीट की क्या? हाँ, महिलाओं के साथ भी साहब कपड़ा उपड़ा फाड़ दे, लाली बैठी, इनके भी सूट उठ फट गए थे। ये क्या कह रहे थे, कौन से गाने चाहिए थे? मैं गाना चलाना चाहिए। मतलब मुसलमानों गाने चलाओ? मुसलमानों के गाना चलाओ, ये है बात। 3 बजे थाने में घुसे हम, तो उनका जायदा का फोन आता रहा, उन पे थानेदार पे दबाव था। जायदा कौन है? मंत्री है? मंत्री है जी। Viewers, it doesn't end there. When the family members went to the police station, their case was not even registered. Their case was not registered. They alleged they were intimidated and made to sign a settlement instead. The family now names Gehlot's minister Zahida Khan as the one who put pressure on the police. This is a claim, viewers. We are not underscoring or underlining this claim. Listen in. मतलब इस बात पे गाना बज रहा था इसलिए झगड़ा हो गया? हाँ, कोई गाना वाना होगा उनके। क्या था ऐसा गाने में जो झगड़ा? मैं सुने ना जी, मैं कैसे बताऊं। अच्छा, आप लेट पहुंचे? हाँ, मैं लेट पहुंचा बिल्कुल। फिर आपके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए तैयार थे लोग? वो जो मेरे खिलाफ जो आदमी थोड़ा कौन सो बहुत सारा मतलब कोई होगा, कोई भी हो, उसी को आगे रखते ही है। तो पंचायत समिति में डायरेक्टर भी रहे ना? हाँ जी, वहाँ रहे थे पिछले। अच्छा, इनका ये आरोप है कि साहब जो मंत्री हैं यहाँ से जाहिदा खान, वो आप उनके खास आदमी है, इसलिए आप दबाव बना के राजीनामा करवा रहे हैं। खास आदमी तो सब ऐसा जी, वो साहब 40,000 वोटों से जीती थी, और जब 40,000 वोटों से जीते तो यूँ लगा पूरी विधानसभा में खास आदमी पूरी जनता उसकी। और जाहिदा जी एक ऐसी नेता भी हैं जो आज तोड़ी उसने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया।
फिर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं भेदभाव? ये आरोप से ये मतलब आरएसएस वाले बीजेपी वाले लगा रहे हैं। ये साजिश राजनीति, ये लोग तो आरएसएस बीजेपी के नहीं है। ये तो नहीं है, अब तो नहीं है राजनीति के। अब जो ये लगाने वाले मतलब वो कह तो देते हैं अब ये ऐसे कर लो, ऐसे रख लो, ऐसे ये साजिश है। जाहिदा जी की इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो सच बात बताई जा, जाहिदा जी से मिला भी नहीं हूँ। हाँ, ऐसा दबाव बनाया कोई, क्या किया है? दूल्हे को उठवा देंगे, साड़े को उसको बंद कराएंगे। पता नहीं ये सिस्टम, हम भी तो यही सोच रहे हैं। दूल्हे को कैसे उठा देंगे दूल्हे को? भाई पता नहीं सर इसमें क्या हुआ है कि वो लड़का और उसकी मम्मी, उन्होंने हमारे लिए कोई ऐसी मुकम्मल बात नहीं कही। बाहर आने के बाद में जैसे बोलते हैं कि भैया चलो राजीनामा कर लें। इसके चाचा भी बैठे हैं, हम परिवार में लगते हैं, हम परिवार में ताऊ के लड़के लगते हैं। जो इसका खास चाचा था वो भी वहीं बैठा था, उसके लिए भी कोई ठोस मतलब वहाँ पर कोई वो नहीं दिया जवाब। ये भीतर थे, लड़का था, उसकी मम्मी थी, दो ही थे, प्रवाद लेके गए। तो उन्होंने बाहर आके हमारे लिए, किसी के लिए भी, वहाँ 20-25 लोग थे, किसी के लिए कोई ठोस हमारे लिए कोई भी सबूत नहीं दिया। उन्होंने कि भाई ठीक है ऐसा करो, गांव का मामला है, राजीनामा कर लो, या कुछ भी नहीं कहा। यार हो गया राजीनामा, तो भाई चलो दवा बना दिया अंदर ही। पता नहीं क्या। Viewers beaten, black and blue, no complaint filed. The police say the reason they haven't filed any complaint is because this entire family, this entire clan of people are lying. Listen in. ये क्या है कि बच्चों की छोटी सी बात का विवाद है और इसके अलावा कोई ज़्यादा मसला नहीं है। दोनों पक्षों में गाना बजाने की बात को लेकर विवाद हुआ था और वहाँ पर समाज के जो लोग थे उनको, दोनों पक्षों के समाज के लोग थे, उन्होंने समझा दिया। किसी प्रकार की किसी पक्ष ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है और हमारे अनुसंधान में भी ये क्लियर आया है कि बारात चढ़ाने उतारा जैसी कोई घटना नहीं है। ये सिर्फ बच्चों की बात को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ था और दोनों पक्षों के लोगों ने आराम से उनको सॉर्ट आउट कर दिया। हमने जो बात की है वहाँ जाके, जो पीड़ित पक्ष है उनका ये कहना है कि साहब हमारे डीजे को बंद करवाया गया, मारपीट की गई और हम परेशान रहते हैं, हमें दबंगई दिखाई जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। Let me go straight across to Bhavar. Bhavar, पुलिस एकदम डिनाई कर रही है। पुलिस कह रही है दिस इज अ स्मॉल इशू। देखिए, राजस्थान की पुलिस को अगर समझौता पुलिस कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से 14 तारीख को भरतपुर के ही एक गांव में दलित लोगों के साथ मारपीट की गई, जो शेड्यूल कास्टन के साथ मारपीट हुई अम्बेडकर की जयंती मनाने के दौरान, और फिर जब वो पुलिस में पहुंचे पूरे गांव ने पलायन करके कलेक्ट्रेट का घेराव किया कि हम लोग अपने पशु, बच्चों, महिलाओं सहित घर के बाहर आके यहाँ बैठ गए हैं। उस दौरान पुलिस ने एक आदमी को जरूर अरेस्ट किया और उसके बाद दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया। आज जब हम इस घटना की बात कर रहे हैं, भरतपुर के कामा के पास में नंदेरा गांव की घटना है, जहां पर एक बनवारा नाम की रस्म होती है शादी में। उस रस्म के दौरान दूल्हे को उतार करके पीटा जाता है, महिलाओं को पीटा जाता है, उनके कपड़े फट जाते हैं, चोट के निशान होते हैं। एक घर जहां पर शहनाई, ढोलक और संगीत होना चाहिए, वहां मातम सा दिखाई देता है, रंग बदरंग दिखाई देता है, माहौल गमगीन हो जाता है, एक दूल्हे की मां रोने लगती है। ये सब हमने वहां जाकर देखा और जब बात की तो हमने दूल्हे की मां को रोते हुए भी देखा। और ये तब की घटना है जब समझौता हो चुका, मतलब सुबह वो थाने में पहुंचते हैं लेकिन शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। फिर डिप्टी साहब वहां पदार्पण करते हैं, उसके बाद वो दबाव बनाते हैं और जिस तरह की महिला ने आरोप लगाया कि मंत्री के लगातार फोन आते रहे और उसके बाद सब लोगों ने घेर कर हम पर दबाव बनाया। चूंकि हम संख्या में गांव में कम हैं, हमारे सिर्फ 3-4 घर हैं, इसलिए हमें समझौता करना पड़ा। हम गरीब आदमी हैं, हम इस तरह केस नहीं लड़ पाएंगे और वहां डराया गया और वो डर अभी तक उसके जहन में था और वो डर अभी भी उनके जहन में है कि कभी भी कुछ भी उनके साथ हो सकता है। इसलिए उन्होंने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की। Claims, counter claims, but viewers, an investigation could actually settle the issue. No FIR. You can't probe without an FIR. Huge problem. Huge problem, viewers. I'll take a short break.